Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, today in today's lecture, we are going to discuss about the warming up and also the English workshop of the first poem of the second unit, that is the 2.1 Animals. So, you can just open the page number 44 of your textbook. Yes, you can see the first question here in the warming up. Get into pairs and attempt the following. Line is given here. The more I learn about people, the more I like my dog. It is said by Mark Twain. Discuss with your partner what Mark Twain means from the above quote. So, मार्क ट्वेन इस लाइन से हमें क्या बताना चाहते हैं, ये हमें बताना है, यहाँ पे डिस्कस करना है. सो ये लाइन तो एक ही बात बताती है, दैट द एनिमल्स आर बेटर दैन द ह्यूमंस, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो आई थिंक सो मार्क ट्वेन humorously compares humans with dogs here. He does so because humans are selfish, ungrateful and shrewd. स्वार्थी है, कृतज्ञ है एंड चालाक भी है, चतुर है, धूर्त है हम. वेर एज डॉग्स आर डिपेंडेबल, लॉयल एंड लविंग. तो डॉग्स कैसे बहुत ही लविंग है और बहुत ही लॉयल होते हैं, ऐसा नो. सो ही बिलीव्स दैट हिज डॉग is far better than humans. Yes or no? So dogs never hold a grudge against anybody like humans. They don't harbor any prejudice or malice, or, and they are always loving, gentle and loyal. So I think so we get to learn a lot of values from them. The positive traits of animals, I think so makes Mark Twain say the above quote. Okay, the given quote. So I think so very nice thing is here that actually whatever the qualities are there in animals, they are not present in humans. It is said by Mark Twain. So next question is here. Put the following attributes, abilities given below in the proper circles. तो कौन सी क्वालिटीज़ ह्यूमंस की है, कौन सी क्वालिटीज़ एनिमल्स की है, और दोनों में भी कॉमन ऐसी क्वालिटीज़ कौन सी है, यह हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पहले देखते हैं ह्यूमंस की कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती है यहाँ पे. तो ह्यूमंस की क्वालिटी है, आई थिंक सो यहाँ पे ह्यूमंस की पहली क्वालिटी हो सकती है कि वो कुक कर सकते हैं, कुक्स. यस, एंड देन आई थिंक सो उनके पास गुड मैनर्स भी है. यहाँ पे लर्न्स कंप्यूटिंग भी जम सकता है. हम गॉड को वर्शिप भी करते हैं. एंड आई थिंक सो इनफ. ये है ह्यूमन बींग्स के क्वालिटीज़. उसके बाद में हम देखते हैं एनिमल्स की क्वालिटीज़. एक तो बहुत ही खास उनकी क्वालिटी है, हैज़ 360 डिग्री विजन, और यहाँ पे लिव्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स, ये भी हो सकता है. स्लिप्स इन स्टैंडिंग पोजीशन, ये भी उनकी क्वालिटी है. ये भी हो सकता है. स्टैंड्स अप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बिलोंग्स टू वेरियस स्पेसीज, ये भी हो सकता है.
तो कॉमन यहाँ पे अब देखेंगे हम कॉमन कौन सी क्वालिटीज़ है। तो आई थिंक सो कॉमन क्वालिटीज़ में यहाँ पे आता है सेल्फ कंट्रोल है, यस। लव एंड केयर है कॉमन में। देन शोज ग्रेटिट्यूड भी है, स्विमिंग भी करते दोनों भी। ये भी कॉमन में आता है, स्टैंड्स अप इमिडिएटली। और आगे देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दोनों भी। और ये भी ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन, ये है कॉमन में, यस डन। चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 3। एट टाइम्स स्पेशली when you are frustrated, you wish you were an animal, a bird, a fish, a butterfly, and not a human being. Say which of the above you would choose to transform to, and give 3 or 4 reasons for your choice. So I think so better to become bird. I think so. I wish I could be a bird. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं एक बर्ड बनना चाहूँगा। Because so I could fly away from this place to the any natural place where I can get the calmness, where I can get the peace. I could fly to the distance. I could go to the any forest and have the fruits which I liked. I could do whatever I liked. Yes or no? And I think so I would like to go far from the crowd of the human beings, the traffic, the noise, and go to the silence where I can get the peace. So I could just live my life. So I would also search a best place to live, which can be equivalent to the heaven, very close to the God. Yes. So and it's very easy to travel, because actually I could just flap my wings and I could go to the any place, or I would go to the any place where I liked very much, or the things which could make me happy. So I would just go to those all the places. Yes. And I would also forget all the worries of my life, because of that a very peaceful and comfortable place. Yes. Next question यहाँ पे है, we come across many animals in our vicinity. We have also read about different animals in books. Make a list of all animals that fall under various categories. One is given for you. तो देखिए, हमें यहाँ पे एम्फीबियंस, मैमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स, इनके एग्जाम्पल देने हैं। तो एम्फीबियन का मैं बता सकता हूँ कि सैलेमेंडर है, टोड है, यस, एम्फीबियन और आते हैं कौन से, यस, न्यूट्स आते हैं, कैसिलियंस होते हैं, यस। सो दीज आर मैमल्स हमारे पास ही होते हैं, जो कि हम देखते कि ऑक्स, डॉग, बियर, डियर, टाइगर, स्क्विरल, बैट, ये सब मैमल्स है। अब वाइल्ड एनिमल्स कौन से है? तो वाइल्ड एनिमल्स आई थिंक सो टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड है, वुल्फ है, फॉक्स है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स है। अब एक्वेटिक एनिमल्स कौन से है? तो एक्वेटिक है, ऑक्टोपस तो उन्होंने दिया है, शार्क, सी हॉर्स है, स्टारफिश है,
ऑल टाइप्स ऑफ फिशेस आर देयर, वेल है, सील, यस, सो आई थिंक सो दीज आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल्स। अब पेट एनिमल्स कौन से, तो कैट है हमारे पास, डॉग है, पैरट भी हम रखते हैं घर पे, फिशेस भी रखते हैं, रैबिट्स, ये सारे पेट एनिमल्स है। यस, सो आई थिंक सो वी हैव कंप्लीटेड द वार्मिंग अप एंड नाउ वी विल गो टूवर्ड द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम। So you can just open the page number 47 of your textbook. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द वर्ड्स गिवन इन टेबल ए विद देयर मीनिंग्स इन टेबल बी। अब यहाँ पे वाइन का मतलब क्या है ये हमें बताना है। तो वाइन का मतलब है कंप्लेन इन एन एनोइंग वे, मीन्स कंप्लेन करना, ये इसका मतलब है। सीन, सीन हो सकता है यहाँ पे ये एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मोरल लॉ। यस, अब आगे है इवेंट्स। इवेंट्स का हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, इवेंट्स मीन्स शो। मैनिया, मैनिया का हो सकता है क्रेज। एंड नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट जिसे हम कह सकते हैं, बाकी जो बाकी रहे वाला है डी नंबर का है उसका आंसर फॉलिंग टू टेक प्रॉपर केयर। सो प्लीज नोट डाउन these all the things and we'll see the next question, that is the B question. Find adjectives from the poem which refer to positive and negative thinking. तो हमें ऐसे कुछ एडजेक्टिव निकालने हैं पोएम में से जो एक पॉजिटिव व्यू दिखाते हैं और नेगेटिव व्यू भी दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव में हम पहले देखेंगे, पहला लिखिए यहाँ पे प्लेसिड, सेकंड लिखिए सेल्फ कंटेन्ड, तीसरा लिखिए रेस्पेक्टेबल। अब चलिए नेगेटिव में लिखते हैं डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी एंड डिमेंटेड। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जहाँ हमें ब्लैंक्स फिलअप करनी है। सो यहाँ पे द पोएट विशेष ही कुड, द पोएट विशेष ही कुड, यहाँ पे आपको लिखना है पहली ब्लैंक में स्टैंड एंड लुक एट द एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है बी नंबर की, एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट, अबाउट सीन्स। यस, नहीं सीन्स के बारे में नहीं है, कंप्लेन अबाउट आई थिंक सो देयर कंडीशन। सो देयर कंडीशन यहाँ पे लिख लीजिए, देयर कंडीशन। एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट, किस चीज़ के लिए वो क्रेजी नहीं है, तो आई थिंक सो द मैनिया ऑफ owning things, the mania of owning things। आगे का क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 3 नंबर का है क्वेश्चन। सो पहली जो लाइन है वो देखते हैं हम। एनिमल्स आर सेल्फ रिलायंट, तो एनिमल्स कैसे सेल्फ रिलायंट है, तो ये ट्रू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रू। पहली जो लाइन है वो ट्रू है। सेकंड जो है एनिमल्स क्वारल फॉर देयर पोजेशंस। सो ये जो लाइन है, सो आई थिंक सो एनिमल कभी भी उनके पोजीशन के लिए झगड़ते नहीं है, बट एक्चुअली दे आर सेटिस्फाइड बीइंग्स हु नेवर क्वारल फॉर देयर पोजेशंस। सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट डाउन देयर फॉल्स। ओके, फॉल्स लिख दीजिए वहाँ पे। सी नंबर की जो यहाँ पे लाइन है वो हम देखते हैं। एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स, तो आई थिंक सो इट्स अ ट्रू। यस, यू कैन राइट ऑन देयर ट्रू। उसके बाद में डी नंबर का है ह्यूमंस हैव गिवन अप मेनी गुड क्वालिटीज। सो आई थिंक सो ये भी सही बात है कि हमने बहुत सारी हमारी गुड क्वालिटीज छोड़ दी है। यस, वी हैव लॉस्ट दोज ऑल द थिंग्स, सो इट्स अ ट्रू।
ई नंबर का यहाँ पे है एनिमल्स सफ़र ह्यूमिलेशन. So I think so they never suffer humiliation, but animals respect each other in spite of their diversity. Yes or no? उसके बाद में the poet has retained all his natural virtues. So I think so no, we have lost most of our natural virtues. तो ये false है, लास्ट की दोनों भी false. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया गया है और वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द पोएम फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कौन से डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पे बताने हैं. तो एक एक एग्जांपल उन्होंने दिया है. ह्यूमन्स बींग्स में उन्होंने दिया है ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. एंड एनिमल्स में उन्होंने दिया है नेवर कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं. तो सेकंड पॉइंट लिखिए ह्यूमन बींग्स में. सो सेकंड पॉइंट है लाई अवेक एट नाइट एंड रिपेंट फॉर देयर सिंस. इधर एनिमल्स में 2 नंबर में लिखिए Do not worry about sins and sleep peacefully. फिर यहाँ पे लिखिए ह्यूमन बींग्स में 3 नंबर में always dissatisfied. एंड एनिमल्स में लिखिए never dissatisfied. never dissatisfied. और एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में demented with the mania of owning things. एनिमल्स में लिखिए no mania of owning things. ह्यूमन बींग्स में लिखिए have let go of their virtues in their need for progress. इधर लिखिए एनिमल्स में have adopted the virtues which were once essential characteristics of human beings. Yes, done. चलिए लास्ट पेज की तरफ. पेज नंबर है 48. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है रीड द टेक्स्ट अगेन and complete the web highlighting the good values habits which we can learn from animals. तो एक उन्होंने दिया है यहाँ पे they are placid and self contained. तो दूसरी बॉक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे they do not complain about their condition. लिख लीजिए they do not complain about their condition. तीसरा लिखिए they do not lie awake and weep for their sins. चौथे नंबर का लिखिए यहाँ पे they do not just discuss their duty to God. यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट नंबर में they are not crazy about owning things. एंड लास्ट नंबर में लिखिए they treat everyone equally. यस. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. तो हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताने हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के. लाइन्स पिकआउट करनी है. पहली लाइन हमें पिकआउट करनी है जहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिखाई देता है. तो आई थिंक सो एक लाइन है आई स्टैंड एंड लुक. जो 3rd नंबर की लाइन है आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. यहाँ पे लिख लीजिए आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मीन्स यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग वर्ड रिपीट हुआ है. सो दैट्स वाई इट कैन बी कॉल्ड एज अ
रिपीटेशन। वैसे और एक लाइन है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। यहाँ पे नॉट वन रिपीट हुआ है, सो यहाँ पे भी रिपीटेशन आता है। एलिट्रेशन अगर हम देखें तो पहले लाइन में भी एलिट्रेशन है, सॉरी थर्ड लाइन में भी एलिट्रेशन है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लुक, लॉन्ग, लॉन्ग, ये जो तीनों वर्ड्स है यल साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। फिर और एक लाइन है, दे डू नॉट मेक, दे डू नॉट मेक, एक 6 नंबर की लाइन है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि यम साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मेक मी, और उसके बाद में डू, डिस्कसिंग, ड्यूटी, यहाँ पे डी साउंड भी रिपीट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज अ एलिट्रेशन। उसके बाद में हमें बताना है हाइपरबोल का एक यहाँ पे एग्जाम्पल देना है। तो हाइपरबोल का एग्जाम्पल है, आई थिंक सो लास्ट की अगर आप लाइन देखें, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। ये जो लास्ट की लाइन है पोएम की, यहाँ पे हाइपरबोल है। द वर्ड्स ह्यूज टाइम्स एगो आर यूज्ड टू एग्जैगरेट द पैसेज ऑफ टाइम। सुनो, तो पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे एग्जैगरेट किया गया है, तो यहाँ पे हाइपरबोल हो सकता है। अब इन्होंने कुछ लाइन्स दिए हैं, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। जो भी लाइन दिए है उनमें कौन सा फिगर स्पीच है वो बताना है हमें। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन है। उसके बाद में लुक, लॉन्ग, लॉन्ग, यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, एक ही लाइन में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे है, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। बी, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सो यहाँ पे वाइन जो वर्ड है विच इज डेनोटिंग द साउंड ऑफ कंप्लेंट्स, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ओनोमेटोपिया, ONOMATOPOEIA, तो ओनोमेटोपिया। Yes, next one is there, C line is there, they do not make me sick discussing their duty to God। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एलिट्रेशन है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेक मी एम साउंड है, डू, डिस्कसिंग, ड्यूटी, ये तीनों वर्ड्स डी से शुरू हो रहे हैं, तो ड साउंड यहाँ पे थ्राइस रिपीट हुआ है, सो दैट्स व्हाई एलिट्रेशन है यहाँ पे। उसके बाद में नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, तो यहाँ पे टोटोलॉजी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमेंटेड एक वर्ड एंड मैनिया, इन दोनों का मीनिंग सेम है, दैट इज क्रेजी, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए टोटोलॉजी। उसके बाद में दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, तो यहाँ पे एक पहला तो आई थिंक सो एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे मी एंड माई सेल्फ एम साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। अगर आप देखें और एक बात है, यहाँ पे टोटोलॉजी भी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वर्ड्स आ गए हैं मी एंड माई सेल्फ, ये दोनों वर्ड्स मीन द सेम, सो दैट्स वाई यहाँ पे टोटोलॉजी भी है। एंड लास्ट की लाइन है यहाँ पे, नो वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो आई थिंक सो यहाँ पे है एक हाइपरबोल भी आता है, क्योंकि द होल वर्ड हैज़ बीन एक्सरेटेड टू रेफर टू एनिमल्स दैट लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट्स हाइपरबोल इज हियर। यहाँ पे एंटीथेसिस भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि लाइक 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज लाइक रेस्पेक्टेबल मीनिंग हैप्पी और सेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी मीनिंग सैड और डिससेटिस्फाइड है, आर प्लेस इन द सेम लाइन। तो यहाँ पे जो है
रेस्पेक्टेबल मीन्स हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, और अनहैप्पी का मतलब आप जानते हैं डिससेटिस्फाइड होना, सैड होना। तो जो भी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं एक ही लाइन में, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। सो लास्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन दिस पेज नंबर 48. Read the poem again and write an appreciation of the poem in a paragraph format with the help of the given points. Okay, तो let it be. हम जानते हैं कि हमें टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, फिर बाद में राइम स्कीम, देन द सेंट्रल आइडिया, और उसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं। सो डायरेक्टली आई विल जस्ट टेल यू द पोएम एनिमल्स has been written by the famous American poet Walt Whitman. So this poem has been written in a free verse format because it lacks a regular rhyme scheme. So actually this poem does not follow any rhyme scheme, and that's why it's called as a free verse. Okay, so next one is there, we'll talk about the central idea. So the poem is a sarcastic take on what human beings have lost in their craze for a materialistic life. By comparing human life to that of animals, the poet highlights the appalling life man is presently living here. Today he has made rapid strides towards progress and made himself stable, comfortable, and wealthy. He lacks many of the qualities that will make him enjoy the fruits of his labor. He has been reduced to a dissatisfied, materialistic individual who is ignorant of how well life should be lived. Okay, तो ये है सेंट्रल आइडिया एंड फिगर ऑफ स्पीच आपको मैंने बता दिए हैं. सो डेफिनेटली द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम इज इन्हांस्ड मैनीफोल्ड यूजिंग वेरियस फिगर ऑफ स्पीच लाइक एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ओनोमेटोपिया, सो टोटोलॉजी है, हाइपरबोल, that are very simple to understand, and it they result in a rich creation. Yes or no? So I think so this is the perfect answer for the appreciation of this poem. So I think so we will stop here. Thank you very much.